you, Ananya. Very respected Dean Faculty of Commerce, Dean Academics and Dean Student Welfare, Head Department of Business Administration sitting to my left, and then to her left sitting is Head Department of Commerce. Our former Dean of Faculty, Professor R.K. Maheshwari, Professor Sumesh Shukla, Arvind Kumar ji हैं? नहीं. All the respected faculty members of Faculty of Commerce. I believe I am interacting with these students who have taken admission to this Faculty of Commerce among 3 different departments of Faculty of Commerce in this recently concluded admission process of PhD. Is it? How many of you have taken admission this year? And how many from the previous year? So almost equal. So first of all, let me congratulate you all as a student of this university for getting another facility added to this university and also to be put for use for the first time to the students and faculty of Faculty of Commerce, this new auditorium of APCEN. I also formally welcome you all to University of Lucknow family. Many of you might have done your undergraduation or post-graduation here. So, but then many of you might have come to this institution for the first time. So as PhD program student, you all being welcomed by the Vice Chancellor, by all the faculty members and by the university formally here. You know why it is important to assess the status of a doctoral student? Because there is a dichotomy always with research scholars. They cease to be a teacher, a student, but they yet to become a teacher. तो आप छात्र अब रह नहीं गए, शिक्षक हुए नहीं. ये एक बड़ी विडंबना की अवस्था है. This is a state of enormous confusion for you, for your teachers, for your office staff, also for the university. आप हैं कौन? You know, बड़े मजे की चीज ये है, जिसने आपको यूजी पीजी में पढ़ाया वो अभी आपको स्टूडेंट समझ रहे हैं. अपेक्षा आपसे करता है कि आप उसकी क्लास भी ले लो. He or she is on leave, they say भैया जाके जरा हमारी आजकल हम नहीं रहेंगे, मेरी क्लास इंगेज कर लेना. एग्जाम में वो 15 मिनट के लिए बाहर चला गया, कहा जरा तुम देख लेना इन्विजिलेशन. बहुत सारे many of you might be engaged into different activities of examination also. यहाँ एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट का किस्सा हम लोगों को मालूम है, जिन्होंने अपने रिसर्च स्कॉलर से पेपर बनवा दिया और वो जांच चल रही है. मेधावी जी आप तो जानते हैं. तो आप टीचर हुए नहीं, वो जांच इसलिए चल रही है कि लड़के ने बनाया पेपर, उसके हैंड राइटिंग में क्वेश्चन पेपर इज इन पोजेशन विद द यूनिवर्सिटी. सो आपसे काम टीचर का भी ले रहे हैं और ट्रीटमेंट आपको स्टूडेंट का दे रहे हैं. दिस लीड्स यू इनटू अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि भाई मैं हूं कौन, मेरा स्टेटस डिफाइन करो. आप में से कुछ लोगों ने नहीं कहा, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट सम ऑफ यू माइट स्पीक अबाउट दैट, कि भाई जब काम कराते हो कुछ दो भी. शराफत में आप लोगों ने नहीं कहा, लेकिन ये बात सही है. एंड यू नो योर कंट्रीब्यूशन टू हायर एजुकेशन, टू योर इंस्टीट्यूशन एंड टू दी सोसाइटी इज मल्टीफोल्ड. But you know, and I want to take you out of the state of confusion to a state of affiliation. Don't stay back, don't remain into the state of confusion. Come to the state of affiliation.
because our relationship with our research scholars is more an empathetic relationship. हमारा आपका संबंध बहुत प्यार भरा संबंध है, वो उस स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप से थोड़ा सा इतर है, बिकॉज अब हम आपको कहते हैं आप मेज के इस तरफ आ जाओ, हमारी तरफ से देखो, और जब आप हमारी तरफ से इस विश्वविद्यालय को देखोगे, इफ यू सी द यूनिवर्सिटी फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, you would start appreciating the limitations of the institution. And I appreciate your intent that you realize and recognize the limitation of the institution in addressing your issues as well. I believe there are close to 150 to 200 research scholars right here in this hall. I believe 60-70% students might be wanting hostel. We do not have enough. What to do? Many of you might be wanting to be supported with some kind of scholarship, especially those who have not been able to qualify JRF etc. or any other fellowship or college scholarships. You want. Many of you were talking about this Wi-Fi and even computer lab कि Wi-Fi क्यों लाइब्रेरी में मिले, लॉन में क्यों नहीं मिले। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग फ़ोन ले लेके बाहर जा रहे हैं, फिर आप क्लासरूम में भी व्हाट्सएप और फेसबुक करें और ट्विटर। You know, we are in the process of instilling almost all that is good, that is required for the greater good of research and research scholars. But then it's a gradual process. Like for example, almost 3 years, 8 months back when I took charge of this institution, we gradually tried to put in our steps in a very calculated manner, because we are largely a resource deprived institution. So we had to, उसी में हमको रिसोर्स जनरेट भी करना है, रिसोर्स को ऑप्टिमली जनरेट करना है, रिसोर्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है। तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस में we have been moving forward, and we have been by far very successful, much more than what I thought I would be. This facility is also one of such creations. But what is important is that we are in the process. So साइबर लाइब्रेरी एकदम नहीं चलती थी, आज साइबर लाइब्रेरी में वाईफाई चलता है, सिस्टम भी चलता है, खराब भी होता है, फिर बनता भी है। सो इफ देयर इज अ प्रोसेस, आज ये नया हॉल है तो बहुत साफ लग रहा है, कल गंदा होगा, आप ही लोग करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो फिर साफ भी होगा और आप फिर गंदा करेंगे और फिर साफ होगा। सो इट इज अ प्रोसेस। So we are in the process of attending many of the issues that our research scholars often get confronted with. But then there are two aspects of confrontation. One is psychological, rather socio-psychological. Second is physical. Now if you talk of Wi-Fi, if you talk of hostel, if you talk of sanitation, आज गंदा है कल साफ हो जाएगा, फिर कल गंदा होगा, फिर परसों साफ होगा। So it is a gradual process. हॉस्टल है, किसी को नहीं मिला, किसी को मिल जाएगा, कुछ और फैसिलिटी क्रिएट होगी, कुछ और मिलेगा, और फिर और कुछ बच्चे आ जाएंगे हमारे पास। You know, आपके देखते देखते when our degree college teachers provided the status of becoming research scholars, research supervisor, automatically a number of research scholars went down. अब जहाँ 250 एडमिशन हो रहे हैं, वहाँ पे मान लो 750 एडमिशन हो गए या 500 एडमिशन हो गए। The system is not geared up to bear that, the physical liability of the additions. The intellectual liability can be borne. Physical liability would need more time and resource to be mapped to it. So I classify it into two categories. One is socio-psychological, where
we are attending it pretty well. Then there are physical. Third category is academic. Now this academic deficiencies, where you consider it to be as deficiency, essentially needs to be addressed. जैसे शुरू में रोहिणी, there was someone there also who talked about facilitation of interdisciplinary research. She talked about science of economics. She talked about behavioral economics. और तो एक बड़े सीनियर IAS अफसर एक दिन मुझे कह रहे थे कि he is from economics area. So he said कि behavioral economics बड़ा emerging dimension है. See, behavioral finance we know coming from management background. He was talking about behavioral economics. He said जैसे मनरेगा है, ये एक इकोनॉमिक स्कीम है और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लेकिन इसका बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ने, समझने और उसके हिसाब से रीपैकेज करने की, देयर इज अ नीड टू रीपैकेज द एंटायर मनरेगा स्कीम इन लाइट ऑफ दिस. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी. Addressing and attending such issues which have academic impact. देखो आज यहाँ वाईफाई नहीं है, तुम्हारे मोबाइल से चल जाएगा, किसी और के हॉटस्पॉट से चल जाएगा, हम भी लगवा देंगे कल. धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं. हम बताना चाहते हैं, हमने एक असेसमेंट कराया तो यहाँ दीवारें हैं 20-20 इंच, 25-25 इंच मोटी. वो वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए द काइंड ऑफ apparatus that we require are costing us a lot. We are arranging for money. We are in the process. We have written to the government for some support. We have applied under different schemes. Otherwise also we are mustering resource that will attend. That is not big an issue. But this is something that does not require any resource. This is my job. This is the job of all the teachers sitting out here. And I raise such issues in all the academic council meetings. And I invite them to come out of the shells to attend the intricacies of modern education. My student, the student who has taken admission post 2020, they demand for this कि आप साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर मैंने MSc फिजिक्स में की, मैं इकोनॉमिक्स में PhD करना चाहता हूँ, तो आप क्यों रोकते हैं हमको? आप टेस्ट ले लीजिए, हमको पूछ लीजिए, बैकग्राउंड से मत रोको. राइट? अगर कोई बच्चा अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अगर उसको लगता है कि नहीं हमको मैनेजमेंट में PhD करनी है, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए. तो अगर बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स में इन PG यू हैव स्टडीड पब्लिक फाइनेंस. नाउ ऑन सर्टेन फाइनेंशियल इशू, if you want to study the behavioral aspect of it, which would require enormous psychological input, आप हमारा टेस्ट ले लो. If you don't trust me, test me. Isn't it? Test ले लो. If I qualify, allow me. So this I appreciate, and I'm happy to share that we have in 2020 also we revised our new PhD ordinance, and in 2023 we are going to come up with the new PhD ordinance. Your admission shall be subjected to the provisions that are there in that PhD ordinance. Also, that PhD ordinance is usually geared up in favor of the students. Like, if I say कि आप, हम कह रहे हैं कि अब आपको थीसिस बाइंड करा के देने की जरूरत ही नहीं. देखिए बहुत सारे हम रिसर्च स्कॉलर भी रहे और हम टीचर भी रहे, हमने PhD कराई भी, अभी हम वाइस चांसलर भी हैं कुछ समय से, तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट देख रहे हैं. और हम देख रहे हैं कि वो कौन सा एरिया है जहां यू गेट स्टक विद सर्टेन इश्यूज एंड हाउ कैन वी डू अवे विद ऑल दोस. जैसे हमने कहा भाई आपको थीसिस हार्ड बाउंड देने की जरूरत ही नहीं है, एक कॉपी बनवाओ, 2-3 हज़ार रुपए लगते हैं एक कॉपी के, और 6 कॉपी 7 कॉपी 8 कॉपी लगती है. तुमने कहा भाई एक रिकॉर्ड के लिए दे दो लाइब्रेरी को, आपकी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी को रखिए, हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी में तो डिजिटल वर्जन रहेगा. एग्जामिनर्स को हम डिजिटल देंगे एंड वी प्रोवाइड देम
hard copy only when it is specifically asked. It will lessen the time. भाई हफ्ते 10 दिन में जाता है, पैसे अलग से लगते हैं, यूनिवर्सिटी के भी लगते हैं. अगर कोई ऐसा एग्जामिनर कहता है कि नहीं साहब हमको हार्ड कॉपी दे दीजिए, तो हम दे देंगे. हम सबका कंसेंट हम कह रहे हैं ईमेल से और फोन पे ले लीजिए. चिट्ठी हमने भेजी, फिर वो चिट्ठी उसको मिली कि नहीं मिली तो फिर 1 महीना इंतज़ार किया, फिर उसने उसको फ़ोन किया, कहा साहब चिट्ठी जवाब नहीं दिया, बोले चिट्ठी नहीं मिली, अच्छा हम दोबारा भेजते हैं. सो नथिंग लाइक दैट. वी आर गोइंग टू सेंड इट ऑन ईमेल और ऑब्टेन इट ओवर टेलीफोन. कंसिडर इट एज डन थिंग एंड वील सेंड एन ईमेल. आप अपना मेल से रिपोर्ट दे दीजिए, आई डोंट माइंड. आप दे दीजिए, हम आपको डिजिटल फॉर्मेट देते हैं. बहुत जल्दी हम लोग एक पूरा आपके प्रोसेस का पोर्टल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वेयर यू विल बी एबल टू नो कि आपका पेपर कहाँ है. जैसे मेनी ऑफ यू मस्ट बी JRF. कितने हैं यहाँ पर? अब रूम नंबर. आप लोग के लिए एक अच्छी खबर है और एक कम अच्छी खबर भी है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी आपका जाता होगा 6 महीने की रिपोर्ट, 1 साल की रिपोर्ट, सब जाता होगा. वो सारी एनुअल रिपोर्ट्स के लिए यू विल बी एबल टू नो कि हमारा पेपर कहाँ तक पहुँच गया. सो फाइल ट्रैकिंग सिस्टम और एनीथिंग पर्टेनिंग टू योर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. आई एम नॉट सेइंग एडमिशन because you are no more a student. So I am saying from registration to award, entire process you will be able to track. आपको पता होगा कि हमारा एक्स एग्जामिनर, हमने नाम नहीं बताया, एग्जामिनर 1 एग्जामिनर 2, उसको मेल चला गया कि नहीं, रिपोर्ट गई कि नहीं, उसकी रिपोर्ट आ गई कि नहीं, आ गई तो कितने दिन में हम आपका वाइवा अनाउंस करते हैं. सो दिस एंटायर थिंग हैज गॉट टू बी ट्रांसपेरेंट एंड यू शुड बी एबल टू नो कि भाई हमारा कौन सा पेपर किस लेवल पे लाई करता है. मुझे बहुत सारे बच्चे बताते हैं, बहुत बार गलत भी बताते हैं, आई नो, बट इवन देन वो बताते हैं बहुत सारी बातें कि साहब वो परेशान कर रहा है, उसने हमसे कुछ फाउल, उसके इंटेंट है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई नो मेनी ऑफ देम, इन मेनी ऑफ द केसेस इट इज रॉन्ग, बट इवन देन उसका हम स्कोप ही खत्म कर देते हैं. देयर विल बी अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड एट ईच स्टेप यू विल बी नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन with respect to your process. Few things you were talking about, smart auditorium etc. वो तो आप इस्तेमाल करो. Who stops you? It's a university facility. So comprehensive databases was something interesting. I said Pravesh ji is sitting here, so Pravesh ji will take care of this. और कोई भी database अगर हमारा expire होता है उसके 1 महीने के पहले उसका process start कर दीजिए, और so that परपेचुटी में चलता रहे. Someone was saying कि हमको IIM लखनऊ जाना पड़ता है डेटाबेस के लिए. You know, इसको आप तकलीफ ना समझो, ये तो करना ही चाहिए. यहाँ मिले तो भी जाना चाहिए. We all have gone. आप पूछो या जितने टीचर हैं सबसे पूछो. ये जाना is not essentially for database. This जाना provides you enormous learning opportunity. You go to those places, you get to see कि भाई हमारी लाइब्रेरी ऐसी थी, आपकी लाइब्रेरी कैसी है, इसमें से क्या ऐसा हो सकता है जो हम अपनी लाइब्रेरी में कर सकते हैं, इसमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए वायबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास तो UG से लेके PhD तक अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हैं, उनका तो स्पेशलाइज्ड है. इसमें से कौन सी चीज़ आप जाते हो तो you get to talk to so many teachers, आप उनसे बात करते हैं, इस बीच में रिलेशनशिप डेवलप होती है, नेटवर्किंग बढ़ती है. सो holistic development of the student के लिए your movement from one institution to the other is a must, and you should go, you should not refrain just because हमको यही मिल जाए, हमको कहीं जाना ना हो. This is not something I would personally want, but then majority of databases are available here, so that I would want. And similarly ऐसा ही आप करेंगे जो भी जर्नल का रिन्यूअल है उस केस में भी, नॉट ओनली फॉर डेटाबेसेस बट आल्सो फॉर जर्नल रिन्यूअल्स. और ज़्यादातर ऑनलाइन है हमारे पास. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज वेरी गुड फैसिलिटी दैट वी ऑफर टू आवर स्टूडेंट्स इज रिमोट एक्सेस टू द लाइब्रेरी रिसोर्सेज. सो इवन इफ यू आर नॉट इन द लाइब्रेरी और ऑन कैंपस, you are able to access it from your place. So that is important.
Journal publication, all the 3 head of departments are here, so I would want them to initiate. But you know, all these heads are teachers also. All these headship अपने आप में headache ship है. So that is another engagement. This is possible only when you all come forward to shoulder this responsibility. Because you are the biggest beneficiary of this. So you are going to come forward to share this responsibility of facilitating, और आप सभी लोग इसको इनिशिएट करेंगे. अभी तो पब्लिश जर्नल जिसमें खर्चा ज़्यादा लगता था, पब्लिश जर्नल की ज़रूरत ही नहीं है. Online journals are doing very good, fairly good. So there is no issue, I believe, would be there in the way. I said for these JRF people कि हम आपको आपका complete tracking system we are going to provide you. We are increasing the pace at which the disposition and disbursement of all your dues were taking place. We are very soon going to start your attendance on biometrics. And your biometric attendance shall be taken into account while forwarding any of your bill or dues. When I say that you all are more than student and a little less than teacher, you have to behave like a student with all discipline and obedience. Having said this, you also have got to shoulder all the responsibilities of the student, of the teacher, and यही वो learning phase है. So इसको आप नाक बहुत सिकोड़ने की जरूरत नहीं, इसको इसी स्पिरिट में असिमिलेट करने की जरूरत है, इम्बाइब करने की जरूरत है. You take it in your stride. और ये जो आपका जेस्टेशन पीरियड है, विच वी ऑल नो, ये जेस्टेशन पीरियड है, ये आपके छात्र से शिक्षक या शोधपरक व्यक्ति बनने की कि ये प्रसव पीड़ा आप इसको मानिए. ये संघर्ष यही आपको बलवती बनाएगा. आज हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे एक डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के लिए, और आप ही के डिसिप्लिन से थे, और जब आप यू गो डीपर इनटू इट, इट इज नॉट वेरी इनकरेजिंग व्हेन वी सी स्टूडेंट्स. इट इज नॉट वेरी इनकरेजिंग. मुझे तो ये जो बच्चे बोल रहे थे ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे बनिस्बत उसके जो हमारे पास आए थे. सो आप सब बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, लेकिन उसकी फिनिश के लिए अपने को कंफर्ट जोन में नहीं डालना है, थोड़ा डिसकंफर्टिंग जोन में रखना है. That will put you always on your toes and will enhance your learning. That enhancement of learning will enhance your output as well. So what is important is, जहाँ पे जब तक बायोमेट्रिक नहीं लग जाता है, ये सभी विभागाध्यक्ष लोगों से मेरा निर्देश है कि आप इन एंट्री और एग्जिट का रजिस्टर ज़रूर बनाइए. हम आके आपके यहाँ देखेंगे. आप 10 बजे के 10:15 तक मंगा लीजिए अपने कार्यालय में, और उसके बाद 5, 5:15 तक एक बार वापस मंगा लीजिए. जो बच्चे उसके बाद बैठते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मैं जिस फैकल्टी से आता हूँ, हमारे यहाँ 9 बजे खुल जाती है फैकल्टी और रात के 9 बजे तक चलती है. मैनेजमेंट फैकल्टी की हम बात कर रहे हैं. तो आपके यहाँ एक दिन हम गए थे एक विभाग में, वहाँ 5 बज रहा हो, मुझे लगता है 5, 5:15, और चपरासी भी एक ही बचा था. वो हेड मैडम ने रोक के रखा था उसको, एज इफ ये फैक्ट्री का गेट है जो बंद हो जाएगा 5 बजे. नाउ इफ दिस इज द वे वी आर रनिंग आवर डिपार्टमेंट्स एंड वी आर टेकिंग आवर जॉब, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. वी टेक आवर जॉब एज इफ ये 5 बजे का गेट है, बजर हुआ और हम सबको निकल जाना. See, we are into academics. कोई तो ऐसा दिन होगा जिस दिन हम कोई काम कर रहे हैं जिसके लिए मुझे 5 बजे बंद नहीं कर देना. A chaprasi was made to wait. Only one chaprasi in the entire department, and that too because vice chancellor was supposed to come. Not a single faculty, not a single research scholar was there. It is not very encouraging. So if you will behave like this,
this is what you will get at. You will end up getting. So all these biometrics or machinization that acted as a measure of control was resultant of all these escapisms. This was reflection of that. जब आप व्यवस्था से भागने लगते हैं तो व्यवस्था आपको रोकने के लिए अलग अलग बैरियर्स बनाती है, जो इनकरेजिंग साइन एकेडमिक्स के लिए नहीं। एक दिन मैं एक विभाग में गया, मुझे लगता है 10:30 बजे के आसपास। आई आस्क्ड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, साहब कितने टीचर आए हैं? अभी लोग आ रहे हैं। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ प्रायोरिटी is, if at all my job is of any priority, we'll have to see. We go to our classes, we talk to our research scholars only when we do not have anything else to do. That is something not encouraging. And then the system creates barrier to check you and check your escapism, check your deviations. It is equally applied onto all these scholars. भाई आप अगर 5 बजे, चलो गुरुजी चलेगा, उनको घर में बच्चे को पढ़ाने जाना है, वाइफ को लेकर सिनेमा देखने जाना है, घर की सब्जी लेने जाना है, आपका क्या काम है? आप में से एक आदमी नहीं है। हम अभी यहाँ है, मेरे रिसर्च स्कॉलर के पास मेरे चेंबर की चाबी है आज भी, जबकि मुझे 3 साल 8 महीने हो गए प्रकृति छोड़े। आज भी है। बीच में जो अपनी थीसिस कंप्लीट कर देगा, वो जब सबमिट हो गई, अवार्ड हो गई, वो ले आके हमारे पास देगा। 1 बज गया है, वो अभी भी उसके पास चाबी है, वो डिपार्टमेंट जाता है, वो अपना कमरा खोलता है, वो अपना बैठता है, साफ सफाई करता है, कमरे में बैठता है, काम करता है, शाम को ताला बंद करता है, चलेगा। आप में से कितने लोगों के पास आपके सुपरवाइजर की कमरे की चाबी है? देखिए, ऐसा क्या रखते हैं कमरे में? ये छुपाना है? अरे बहुत होगा, एक कंप्यूटर होगा, वो लेके भागेगा नहीं। किताबें होंगी, कुछ क्वेश्चन पेपर्स होंगे, कुछ कॉपियां होंगी। भाई मास्टर के पास क्या मिलेगा? तो ये थोड़ा आप भी you've got to take a step forward to build a little more cordial relation with your supervisor, तो आपको चाबी भी दे, आपके बैठने की जगह हो जाए, और आप लोग थोड़ा ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोजली काम कर सकते हैं। One very important aspect of your research pursuance issue I want to draw your attention to is कि now the university is going to be, आपका 3 साल का रेजिडेंस पीरियड है। 3 साल के बीच में जो कोई कहीं जाएगा, ये फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम डिग्री, आप जाएंगे तो आपको उसका पारितोषिक मिलेगा। दूसरा, हम अपेक्षा करेंगे कि 3 साल से चौथे साल के बीच में, यानी 3 साल का रेजिडेंस पीरियड कंप्लीट करते करते आप अपना थीसिस सबमिट करिए। आप करिए, वो पूरे प्रोसेस में 3 में आपने खत्म करने का सोचा, 3, सवा 3, 3.5 तक कर दिया, 4 तक आप अवार्ड करके जाइए। अगर आप चौथे साल से एक दिन आपका पड़ता है, वी आर गोइंग टू मेक योर सबमिशन डिफिकल्ट विथ ईच पासिंग ईयर। हम आपका सबमिशन मुश्किल करते जाएंगे, और किसी तरीके से नहीं। हम ऐसा नहीं कि आपका फीस बढ़ा देंगे, हम आपका सबमिशन के लिए जर्नल की एलिजिबिलिटी को टफ करते जाएंगे। बिना उस पब्लिकेशन की यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट। सो ऑल दीज इश्यूज आर गोइंग टू कम अप इन द न्यू पीएचडी ऑर्डिनेंस। और आप 4 साल से 5वें साल में गए और तब नहीं किए, तो फिर वो और डिफिकल्ट होगा। अगर 5 साल से ऊपर जा रहे हैं आप, और आप क्वार्टाइल 1 पब्लिकेशन नहीं है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये पार्किंग लॉट तो नहीं है कि जब तक नौकरी, मास्टर्स कर लिया, नौकरी नहीं लगी तो पीएचडी में एडमिशन ले लो। दिस इज नॉट अ पार्किंग लॉट। और एक बात समझिए, इफ यू आर हियर, someone else is not. I
I can tell you what is the kind of pressure that I bear just because you can take admission. आपका दाखिला हो सके इसके लिए बहुत सारा दबाव हम यहाँ पे झेलते हैं कि किसी और का ना हो, जो डिजर्विंग है उसी का। तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस सीट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई और वहाँ नहीं है, तो इसको जस्टिफाई करिए। आइए, अपना रिसर्च करिए, सीखिए और जाइए, जाके देश और समाज की सेवा करिए। ये पार्किंग लॉट नहीं, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक शादी नहीं होगी, जब तक बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं हो जाएगा, तब तक हम यहाँ पड़े रहेंगे। और फिर मेरे पास ढेरों आते हैं, वो 5 साल हो गया तो 7 साल कर दो, 7 साल हो गया तो 9 साल कर दो, 9 साल हो गया तो 1 साल और बढ़ा दो, फिर 6 महीने और बढ़ा दो, फिर 6 महीना 1 बढ़ा दो, फिर 1 साल बढ़ा दो, 11 साल, 12 साल। We have stopped entertaining any such request. And this new PhD ordinance under which most of you have been given admission to, your submission, if it is not timely, is going to become difficult. So this I am telling you, समय से काम करिए और अपना आगे देश दुनिया में नाम करिए। Publication we all emphasize. Now that you are a PhD scholar and I said you are no more a student, तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं कि कम अच्छे स्टूडेंट है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऊपर मैडम बैठी है, वो अच्छी स्टूडेंट है, वो फोन में रिकॉर्डिंग कर रही है, अभी उन्होंने हटा दिया। You can do it, it's all transparent, otherwise also we'll provide you that. You know, you are a good student or the lady sitting down is good student. कौन बेहतर है आप में, ये कैसे पता चलेगा? एग्जाम तो हो नहीं रहा। एग्जाम होता तो हम बताते वो 80% है, 70 है, 60, so 80 is a good one. Here, your publication is treated as a benchmark for your quality. Now, if you have got to outshine and outperform others, because देखो अब आज हम लोगों ने इंटरव्यू किया, एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना था, 12 लोगों को बुलाया था, उसके पहले मुझे लगता है 150-200 लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो 200 से छट के इतने आए, फिर टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, यहाँ तक आए और एक हुआ। तो वही तो होगा ना जो दूसरे से बेहतर अपने को इस्टेब्लिश करे। वो उस प्रोसेस के अंदर दिस पब्लिकेशन फॉर अ रिसर्च स्कॉलर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्वालिटी पब्लिकेशन। नाउ दिस क्वालिटी पब्लिकेशन की मीनिंग और इसका पाथ both have changed a lot. अभी देखो, हम आपको एक शॉर्टकट मेडिसी भी बता देते हैं, आपको थीसिस आप 3 साल में कर लेंगे। मेरी पहली रिसर्च स्कॉलर ने 2.25 साल में सबमिट किया, दूसरे का काम भी 2.5 साल में हो गया, उसकी नौकरी नहीं लगे तो कहे सर हमारे हम बना के रखे हुए हैं, लेकिन हम सबमिट तभी कराइए हमको जब हमारा कुछ हो जाए। तो वो 3-3.25 साल में उसने किया। उसी के साथ साथ एक और लड़का था, उसने भी कर लिया। तो सोशल साइंस रिसर्च, स्पेशली मैनेजमेंट, कॉमर्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसमें कौन सा डिस्कवरी कर रहे हैं आप जो आपको 3 साल में नहीं हो जाएगा, बशर्ते आप कर रहे हो। भाई लिटरेचर रिव्यू टेक्स अ लिटिल टाइम, वो 1 साल लगे, 1.25 साल लगे, 1.5 साल लगे। और हम आपको बताएं, जो चीज़ आपको सबसे बोरिंग लगती है, दैट स्टडी ऑफ इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू, एक्चुअली सबसे की वही है जो सबसे बोरिंग लगती है। तो आप गए और आपके सुपरवाइजर ने कहा ऐसा है, ये वाले टॉपिक पे ये 7 आर्टिकल हमने आइडेंटिफाई किया, इसको जाओ पढ़ के आना। आप 7 को 7 दिन का असाइनमेंट मान लीजिए। मैं आपको बताऊँ, एक एवरेज जो कहा जाता है बाजार में, एक IIM में एक दिन में एक लड़का 300 पेज पढ़ता है। तो ठीक है, आप 300 नहीं 30 ही पढ़ो भाई, 30 ही पढ़ो। लेकिन की इज दैट लिटरेचर रिव्यू। मैंने बहुत सारे पब्लिकेशंस किए। व्हाट आई कुड फाइंड इज, देखो टेक्निक के लेवल पे अभी जितने लोग बैठे हैं ना, दे ऑल वुड ऑलमोस्ट स्टेबलाइज। सबको SPSS आती है, सबको SEM आता है, उन्हें लिजरे लेमॉस में इस्तेमाल कर लेंगे,
वो SEM कर लेंगे, बहुत सारे टेस्ट हैं वो सब कर लेंगे, वो वही तब गिने चुने 10, 12, 15 टेस्ट हैं वही सब लोग लगाते हैं। वही चाहे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस हो, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस हो, रिग्रेशन, कोरिलेशन, काई स्क्वायर, एनोवा, टी-टेस्ट, यही तो लगाते हैं, कुछ और कर रहे हैं। डेटा किसका क्या है, नो वन नोस, नो वन कैन चैलेंज। ये आपके 5 पॉइंट स्केल पे किसी ने 3, 4 दिया, किसी के 2, 3 दिया, हाउ कैन आई चैलेंज? की कहाँ से आया? हम बैकवर्ड रेंज इंजीनियरिंग बता रहे हैं। की है वो आपका लिटरेचर रिव्यू, जिसने बताया, और अच्छा पेपर टेक्निक पे अब छप नहीं रहा है, सभी लोग लगा रहे हैं, सारे टेस्ट छप रहा है, जो अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जितना बढ़िया, जितना साउंड कर रहा है। अभी एक पेपर का रिव्यू आया, उसमें रिव्यूअर ने ये लिखा कि इसमें 2020 तक के ही ज़्यादातर रेफरेंसेस साइटेड हैं। होता ये है कि एक पेपर आप बनाते हो फिर भेजते हो, उसका रिव्यू प्रोसेस 1-1.25 साल लग जा रहा है। तो मान लो 2021 तक में उसने काम किया होगा, 2021 में 22 में उसने भेज दिया। वो कह रहा है कि नहीं, आपके रेफरेंसेस जो हैं वो 2-2.5 साल पुराने ही ज़्यादातर हैं, तो लेटेस्ट रेफरेंस दीजिए। आई एम कोटिंग जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। मीनिंग भाई अभी अगले 6 महीना 1 साल पब्लिश होने में लगेगा, तो वो कहेगा कि तब तक क्या होगा, ये 3 साल पुराना हो जाएगा जो 1.5 साल पुराना है। तो कहेगा पुराने रिसर्च प्रॉब्लम पे आपने काम आज का कर पब्लिश कर दिया, इसको कौन देखेगा? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टडी? सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दिस लिटरेचर रिव्यू पार्ट। बाकी टेक्निक्स आप में से ज़्यादातर को आती होंगी, मुझे लगता है इन योर डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आर वेरी गुड एट रिसर्च टेक्निक्स, एटलीस्ट टेक्निक लेवल दे ऑल आर वेरी गुड। टूल्स में मेजॉरिटी आर वेरी गुड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टूल एंड टेक्निक। सो टेक्निक में दे ऑल आर वेरी गुड, टूल्स में मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी गुड। What all you're going to do is, और आप में से ज़्यादातर तो उतना जानते होंगे जितना मैं भी नहीं जानता, और शायद यहाँ बहुत सारे टीचर्स भी नहीं जानते, इतने अपडेटेड होंगे। आई अप्रिशिएट ये ऋषिकांत अच्छा काम कर रहा है। सो बट देन इशू इज, आर यू एबल टू एक्सट्रैक्ट इनपुट फ्रॉम ऋषिकांत, फ्रॉम टीचर लाइक ऋषिकांत? आर यू एबल टू? किताब तो सभी के पास है, उसमें से कौन क्या ले रहा है? So this you have to, ये कला आपकी है, this you have to garner this. So publication is extremely important, it is important for you, but wherever you send your paper for publication, don't send only in the name of, say, Rohini Yadav. Write Rohini Yadav, University of Lucknow. How many of you have got your institutional ID, email ID? किसी के पास नहीं? डीन मैडम, आप ये इंश्योर करेंगे और 3 दिन में मुझे कंफर्म करेंगे कि इन सब के पास इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी आप में से किसी के पास नहीं है? या आप रजिस्ट्रेशन के टाइम क्यों नहीं कराते? आप सब 3 दिन के अंदर, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट डॉक्टर पुनीत मिश्रा, योर डीन मैडम विल कनेक्ट यू ऑल टू हिम। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक बार बात करिए, ही विल सेंड 1 or 2% ऑफ हिज। आप सब एक इंस्टीट्यूशनल आईडी जनरेट करें और गूगल स्कॉलर पे अपना एक अकाउंट बनाइए जो इंस्टीट्यूशनल आईडी पे ही बनेगा, उस पे जरूर बनाइए, और अपने पब्लिकेशन में मेंशन दीज डिटेल्स। अदरवाइज आपको भी फायदा नहीं होगा। हमारे पास कैंडिडेट आते तो हम लोग पहला, आज तो दिन भर इंटरव्यू कर रहे थे, तो हम लोग पहला पूछते हैं भाई एच इंडेक्स कितना है तुम्हारा? फिर जब वो कहता है कि कुछ सब्सटैंशियल है तो हम आगे जाते हैं, नहीं तो हम छोड़ देते हैं, ये सीरियस ही नहीं है रिसर्च के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च में अच्छा नहीं है तो फिर हम उससे क्या बात करें? यू नो, सो ये ज़रूर करिए। मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स, of course in collaboration with the teachers, can also proceed to file patents, or we are establishing a patent cell in our university. That cell will take care of the entire expenditure that is coming on the way. So this patent or any form of IPR
or any form of IPR. We shall facilitate. You only are supposed to provide the content, and rest everything will be taken care of by that cell. They'll arrange for all the expenditure and all the processing that is to be done. Another important thing, एक विषय बहुत बार आप लोग सुनते होंगे, इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग सुना है? Lot of good institutions are accused of इनब्रीडिंग. माने जो बच्चा जिस संस्था से पढ़ता वही पढ़ाता है. तो ये हायर एजुकेशन में इसको थोड़ा बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, और बहुत केसेस में ऐसा भी कहते हैं. एक बार बीएचयू में बनाया रूल कि आप बीएचयू से पीएचडी किए होंगे तो आपके पॉइंट काट देंगे, जो रिसर्च स्कोर का टोटल करते थे कि उसमें माइनस कर देंगे. ये माइनस कर देंगे का मतलब ये है कि हमारे बच्चे कुछ दिन कहीं और को नौकरी करके फिर आए तो हम उनको लेंगे, लेकिन ग्रो करने के लिए external input is also required. We at University of Lucknow, in our recruitment, we neither are for nor against. We take candidates strictly on the merit. बहुत सारे इनिशिएटिव जो मैंने आपको बताया, which I am expecting out of you. अभी देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने रिक्रूटमेंट शुरू किया. उसने कहा कि जो टॉप 20 NIRF रैंक इंस्टीट्यूशन से नहीं होगा उनको पीएचडी के पॉइंट नहीं दे रहे, कम दे रहे. ऐसा नहीं दे रहे, नहीं दे रहे. तो आपको उसमें आना है कि नहीं आना है? आपको बीएचयू नौकरी करनी है तो उसमें आना है. और ये सवाल आज एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी परकोलेट करेगा. तो with all these initiatives we will be able to rank ourselves up also in various rankings. एक हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हेड HOD साहब हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है सुपर 30, जिसमें students will be trained, master student will be trained to qualify NET or JRF. Most of these students who are sitting here are JRF. तो आप लोग उन श्रेष्ठ लोगों में हैं जिन्होंने वो परीक्षा पास अव्वल दर्जे में. तो ऐसे वो बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं. आप लोग इन कुशल students, you can take help of all these very very talented students to train those junior students. और इनका एक अच्छा इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं. और आप सबसे भी हमारा आग्रह है कि आप उन अपने जूनियर मास्टर स्टूडेंट्स के लिए अलग से कोई सेशन लेंगे. देखिए, एज इफ यू आर ट्रेनिंग, इफ यू आर ट्राइंग टू बी अ टीचर सब्सिक्वेंटली, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उस पेशे से जुड़ जाएं अभी से. और पूनम जी ने आपको बताया कि बहुत सारी हमारी मेंटरिंग स्कीम्स हैं, बहुत सारी दूसरी इनिशिएटिव्स हैं स्कॉलरशिप की या किसी और तरह की, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा. बट देन इफ यू गेट engaged into training of your juniors for an exam, something that you have already qualified, आपके लिए भी आसान है, अच्छा है, और उनके लिए भी बहुत फायदे का है. तो उसके साथ आप जरूर जुड़िएगा. And when I say that you are no more student, actually I say this based on the input कि आप लोग बहुत सारा सहभागिता नहीं करते हैं स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में, which I want you all to be more active with respect to your participation in other activities. एक बात का और निवेदन है कि अब now that you all have joined University of Lucknow, you all are the brand ambassadors of the university. तो बाहर इसका हमारी अपनी, किसी को वाईफाई नहीं मिल रहा होगा और किसी को रिसर्च स्कॉलर का अलग चेम्बर नहीं मिल रहा होगा, ऐसा हो सकता है. किसी को अलग कंप्यूटर नहीं मिल रहा हो, किसी का डेटाबेस पुराना हो गया हो, ये हो सकता है. दोज इश्यूज वी सॉर्टेड आउट. बट आउटसाइड यू ऑल आर the brand ambassador of the institution. So you have got to keep the flag of the university high. आप में से कितने लोग ट्विटर पे हैं? कितने लोगों का अपना ट्विटर हैंडल एक्टिव है? तो आप सब जो नहीं है वो भी होइए, यूनिवर्सिटी के अकाउंट को फॉलो करिए.
हमारा YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स जो होते हैं, अभी आज ही मुझे किसी डिपार्टमेंट के 2 बड़े एमिनेंट स्पीकर आ रहे हैं, तो उनका एक लेटर आया था, तो आई स्पेसिफिकली रोट ऑन द लेटर दैट देयर लेक्चर ऑफ कोर्स विद प्रायर परमिशन फ्रॉम देम should be placed on the Prestige YouTube channel, so you can get exposed to without any expenditure. उसको ज्वाइन करिए और यूनिवर्सिटी की कीर्ति को बढ़ाने में अपना आप अच्छा काम करते हैं। हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो भी टीचर अच्छा पब्लिश करता है, किसी को अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, किसी को कोई अवार्ड मिलता है, किसी को कोई भी दूसरा फेलिसिटेशन है, किसी भी तरह से वो विश्वविद्यालय की मान मर्यादा में वृद्धि होती है, तो उसको बढ़ाने में हम सब उसको बढ़ाते हैं और बाहर ले आते हैं। दुनिया देश इसके माध्यम से बहुत आसानी से जान जाता है। As I said, our new teachers, especially the newly recruited teachers, they are very, very talented. They are tech savvy, and of course, they are technology rich as well. So I would want you all to collaborate with them. You know, the initial researches, जिस तरह के पेपर आप शुरू में लिखते हैं, जब आप रिसर्च स्कॉलर होते हैं या नए नए टीचर होते हैं, दे आर लार्जली टेक्निक बेस्ड रिसर्चेस। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, डेटा कलेक्ट किया, उस पर टेस्ट लगाया, जो भी उसके लिए टूल का इस्तेमाल किया, और उसको इंट्रोडक्शन से लेके रेफरेंसिंग तक कहानी बना के किसी जर्नल को भेज दिया और पेपर छप गया। छप जाता है, आपको भी खुशी होती है। बट इनिशियल रिसर्च पेपर्स आर लाइक दिस वन। जो सीनियर लोग होते हैं, दे आर इनटू राइटिंग कंसेप्चुअल पेपर्स। अभी हम आपसे कितना भी कहें या कितना भी हम आपको सीडिंग करें, आई एम टेलिंग यू, वो उसका डाइजेशन सिस्टम हमारा प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए। So what you are going to do is, you are going to collaborate with all those senior teachers for this conceptual foundation. जितना ज़्यादा आप उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा conceptual foundation आपका strengthen होगा, और वो फिर when it meets the technology and technique, it will become something which is more publishable. 2 तरह के काम हम करते हैं रिसर्च में भी। एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, जैसे इन डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ भारत लैब। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर कंट्री। सो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीडिफ्यूजन, आप में से जानते होंगे बहुत सारे लोग, ये फुल सर्विस देश की सबसे बड़ी एड एजेंसी है, उनके कोलैबोरेशन में अभी एक स्टडी स्टूडेंट्स के साथ इन लोगों ने की थी, जिसको मुझे लगता है देश के लगभग सभी बड़े पब्लिशिंग हाउस ने, सभी बड़े का मतलब बिजनेस लाइन, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस वर्ल्ड, जितने आप कहेंगे लगभग सभी ने, कुछ ने फ्रंट पेज न्यूज़ इसको पब्लिश किया। इट वाज ऑन द सोशल मीडिया हैबिट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ यूथ। इसके साथ संगीता जी आप इन सभी लोगों को ज्वाइन कराइए, दे विल ऑल एक्ट एज एन इनपुट। सो आपसे हम अपेक्षा ये करेंगे इनिशियल डेज में, बिकॉज यू नो सर्वे टेक्निक वगैरह भी आप पढ़ते हैं, आप इसके थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोज हु आर अ लिटिल मैच्योर कैन एक्ट एज अ मेंटर टू ऑल द पीजी स्टूडेंट थ्रू व्हिच यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ पे हम लोग एक नया भारत फॉन्ट भी रिलीज करने के प्रोसेस में हैं। जैसे आप टाइम्स न्यू रोमन सुना, एरियल सुना, ऐसे एक भारत फॉन्ट भी रिलीज करने के प्रोसेस में है। तो ये सब नए नए डेवलपमेंट्स, एंड दिस विल आल्सो इनेबल यू टू कनेक्ट विद द कॉर्पोरेट एंड द एप्लीकेशन साइड ऑफ ऑल दिस। एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि जब भी ऑफ कोर्स क्वेश्चन लेते हैं, कई बार स्टैंडर्ड लेते हैं, कई बार अपना डेवलप करते हैं। व्हेनेवर यू टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, जो 2 चीज़ें हम लोग नहीं करते, जो अभी तो बहुत इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बड़े आदमी हो गए तो आपको परेशान करेगा। वो 2 चीज़ें क्या है? पहला, whenever we use an established questionnaire, we should seek prior approval from the one who holds the copyright. जो ज़्यादातर केस में हम कहते हैं कि हमने वो स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर ले लिया,
टेक्निकली यू आर नॉट सपोज टू टेक इट विदाउट प्रायर अप्रूवल। सेकेंड इज तो आपसे कहते हैं ये स्टडी कहाँ की, आपने कहा बैंक में, कौन सा बैंक था, स्टेट बैंक या ICICI बैंक में, HDFC में। आपने कहा हमने ऑटोमोबाइल में की, हीरो मोटो में की, बजाज में की। आपने कहा हमने रियल एस्टेट में की, हमने हॉस्पिटैलिटी में की, हमने ताज ले लिया, वेलकम ग्रुप ले लिया। Till you take prior approval from that organization, you are not supposed to conduct any study. तो जब मेरी पहली किताब आई मैग्रो हिल से, तो उसमें CRM पे थी, तो उसके पहले मैं उस किताब की, मेरी बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से भी चल रही थी। हमारा कुछ रॉयल्टी का डिस्प्यूट हुआ तो हमने उसको छोड़ के मुझे लगा ये इसका PHI, तो PHI की मार्केटिंग अच्छी है तो PHI के साथ चले गए हम। एक टेक्निक उन्होंने हमको बताई कि जैसे लंबे टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको ब्रेक करिए तो मोनोटनी दूर होती है, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो ब्रेक करने की कई टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग पब्लिशिंग हाउस अलग अलग टेक्निक लगाता है। तो PHI टोल्ड मी कि आप इसमें फ़ोटो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस इंसर्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस इंसर्ट कर सकते हैं, कोई बीच में असाइनमेंट दे सकते हैं। तो ये सब राइटिंग के प्रोसेस में, तो बहुत सारी पिक्चर्स हमने इंसर्ट की। तो शुरू में तो इतना आइडिया नहीं था, तो नेट से फ़ोटो ली और उसको भेज दिया, तो उन्होंने वापस कर दिया, साहब ये कॉपीराइटेड पिक्चर है। तो हमने खुद फ़ोटो खींचनी शुरू की, फ़ोटो खींची और डाल दी उसमें, वो छप गई और किताब हमारी खूब चली, अभी भी चलती है। फिर एक किताब हमारी आ रही थी मैग्रो हिल से, तो हमने यही टेक्निक उस पर भी लगाई। तो उसने कहा ना, अब मान लीजिए वी आर इनटू कॉर्पोरेट स्टडीज, तो मान लीजिए हम बैंक के बाहर गए और हमने उसकी फ़ोटो ले ली, यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI, हमने फ़ोटो ले ली और किताब में कहीं इंसर्ट कर दिया कि ग्राहक लाइन में लगाए और SBI का बोर्ड लगा। तो उसने कहा साहब SBI से परमिशन ले लीजिए तो फ़ोटो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। मतलब इतने प्रपंच में पहुंच जाए। Then I shifted to some other means. So what I'm trying to say is, anything that you borrow from anyone, सोशल मीडिया में आप दूसरे की फोटो खींच के डाल देते हैं, क्या IT रूम में अलाउड है, परमिसिबल है? तो लोग बॉदर नहीं कर रहे हैं तो चलो ठीक है, बट आप बड़े आदमी हो जाओगे तो बॉदर करने लगेंगे, ठीक है? So these are some of the precautions that you all are supposed to take care of very well. Since you are at the beginning of your research assignment, so I hope some of these inputs will certainly be of any use. Feel free to contact me. I'm available. In fact, I'm available 24/7. You can come to my office. You can write down some maybe WhatsApp message, email me. I'm available and I normally respond to all the informations. Unless कि अगर कोई गैर ज़रूरी बात है, तो आप हमको रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहोगे तो राइट। आप हर त्यौहार का नाग पंचमी की हमको बधाई दोगे तो हम क्या करेंगे, हम कितने लोगों को लेंगे। बट देन इफ़ यू हैव एंड ऑल दोज टीचर्स हु आर एंड हु हैव बीन वर्किंग, दे नो कि अगर किसी बच्चे ने ये भी लिखा कि साहब हमारी क्लास नहीं चल रही है, तो मैं उसको हेड से या डीन से, कंसर्न पर्सन से, आई टॉक टू देम। इफ एट ऑल देयर आर सम इशू, वी ट्राई टू एड्रेस इट एंड वी अटेंड इट। सो फील फ्री, बट देन फ्यू बॉटम लाइन्स, अच्छा रिसर्च करना है, समय से करना है, अच्छे पब्लिकेशन के साथ करना है, और यूनिवर्सिटी को अपने जीवन का एक हिस्सा बना के रखना है। और तभी आपके काम से हमारी प्रतिष्ठा और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बनेगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Your presence and your words have truly elevated this interactive session.